representatives of the Sufi community attended the meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf issue and presented their side on the khanqahs. New Delhi. A meeting of the Joint Parliamentary Committee was convened on the 20th of September 24 in connection with the Waqf bill proposed by the central government. Sufis from the major dargahs of the country participated in the meeting related to the Waqf bill. In the delegation of Sufi saints, Dargah Hazrat Sayyid Saman Ali, Inayat Ali, Mubarak Ali Malang, Bara Bada Takiya Akbarpur Kanpur Dehat, National Co-Convener Sufi Shah Malang Cell, and Sufi Khanqah Association National Vice President, Sufi Shah Sayyid Ziyarat Ali Haqqani Malang also participated and presented their side on the khanqahs and dargahs. In this regard, he issued a statement and said that he presented his side before the committee and said that there are 72 sects among Muslims and no single sect as the contractor of Muslims. Since independence till now, the representation of Sufis in Waqf boards has been negligible. In fact, under a well-planned conspiracy, with the aim of furthering the agenda of Muslim Brotherhood, Wahhabi Salafis and Ahle Hadith sitting in the Waqf boards have ruined Sufi Waqf properties to weaken the Sufi ideology. He said that people of opposite ideology sitting in the Waqf boards have tried to change the spiritual form of the dargahs and khanqahs and have occupied them. In such a situation, it is necessary that either the Sufi community should be given adequate representation in the Waqf boards, or a Dargah council should be established for the protection of Sufi Waqf properties. It should be noted that in order to bring about reforms in the Waqf boards, the central government has introduced the Waqf Law Amendment Bill, which is being discussed in the Joint Parliamentary Committee. In this regard, spiritual leaders from various dargahs and khanqahs across the country appeared before the committee, including Pyare Mian from Dargah Hazrat Baba Tajuddin Nagpur, Sajjada Nasheen Sayyid Motasim Abul Uli of Dargah Sayyidna Amir Abul Ula Agra, Sajjada Nasheen of Dhakni Sharif and convener Sufi Shah Malang Cell, Mahmud Baba Malang, along with many other eminent Sufi saints were present. Sufi News English. मैं सूफी शाह सैयद ज़ियारत अली मलंग हक्कानी, सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सह संयोजक व नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सूफी खानका एसोसिएशन, कल जेपीसी की बैठक में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझ एक फ़कीर को अपनी राय रखने का एक मौका मिला, जिसमें हम वक्फ संशोधन बिल जो पारित हुआ है, जो कि 195 से लेकर अभी तक सूफी समुदाय की जो भी ज़मीनें थी वो हायर करी गई और सूफियों को, मलंगों को, शाहों को उनसे वंचित किया गया। हमारे बुज़ुर्ग मजनू शाह मलंग मदारी जो फ्रीडम फाइटर रहे, देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किए, अहमदुल्ला शाह वारसी और तमाम ऐसे जो देश के नायक थे, देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया और तमाम ज़िंदगियों को कुर्बान किया, लेकिन आज दिन तक उनका कोई नाम लेवा तक नहीं। वक्फ बोर्ड का मतलब कि जो अल्लाह के नाम पर जागीरें हम फ़कीरों को लोगों ने दी थी, हमारे बुज़ुर्गों को दी थी, हमारी ज़मीनें हायर करके उन पर अनारगल कब्ज़ेबाजी सिर्फ इंक्वायरी की बुनियाद पर कर लिया जाता है कि सर्वे हो रहा है और सर्वे करके पता चला कि हमारी खानकाही हमारे हाथ में ना रही। ऐसी हमारी 3,75,1442 खानकाहें जो सिर्फ सिलसिला आलिया, तबक़ातिया, तहफ़ुज़िया, मदारिया की, तमाम हमारी खानकाहों की ज़मीनें हायर कर ली गई
और कहीं ना कहीं हम लोगों को सताया गया। वक्फ बोर्ड के अंदर आज दिन तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं बना जो हम सूफियों को संरक्षण दे सके, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी लोग हैं, कोई वहाबी सल्लाफी विचारधारा के लोग उसमें बैठे हुए हैं, जो हम लोगों के ऊपर अनारगल फतवेबाजी करते हैं कि ये सूफ़ी लोग हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, ये हमारी विचारधाराओं को मान के ये हमें कत्ल के फतवे देते हैं, हमें कत्ल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जानलेवा हमले भी करते रहते हैं और हमारी इज़्ज़त व आबरू को भी तार तार किया करते हैं। तो मेरी निवेदन है और मैंने बात भी रखी कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो 195 से लेकर अभी तक कोई भी मुसलमानों के नाम पर सिर्फ लूटा गया है, घसूटा गया है। आज दिन तक पूरे हिंदुस्तान में आप सर्वे करा कर देखेंगे तो वक्फ बोर्ड ने ना तो कभी एक मदरसा तामीर करवाया होगा एजुकेशन के नाम पर, ना कोई कॉलेज बनाया होगा, ना किसी गरीब बच्ची का निकाह कराया होगा, ना एजुकेशन के नाम पर किसी बच्चे को बढ़ावा दिया होगा, यानी कि ना तो कोई हॉस्पिटल, ना कुछ नहीं। करोड़ों की संपत्तियां ये वक्फ बोर्ड हायर किए हुए हैं और मुसलमानों के नाम पर ये सिर्फ एक रूमर फैलाए हुए हैं, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं जो ब्रदरहुड के एजेंडे को फॉलो करते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी विचारधारा के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो गज़वाए हिंद के पैटर्न पर हमारे अमन पसंद हिंदुस्तान में जो सूफ़ी संत लोग हैं, जो सूफ़ी विचारधारा के लोग हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं और यहाँ अलगाववाद की विचारधारा रख के और नरसंहार करने की कोशिशों पर लगे हुए हैं। तो मेरी निवेदन है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके और क्या कहते हैं, इनको सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई हो। और दूसरा कि जो वक्फ संशोधन बिल आया है, जो इसमें 44 जो संशोधन है, इसमें हम सूफियों के लिए भी कोई ना कोई जगह रखी जाए। जो अगर ये नहीं होता है तो हमारे दरबार को, हमारे सूफियों को हमारा परिषद अलग बना कर दे दिया जाए, ताकि हमारे जो सूफ़ी विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे सामाजिक लोग हैं, हम उनका संरक्षण और सुरक्षा कर सकें, उनकी एजुकेशन के लिए कोई कार्य कर सकें। आप लोगों से हमारा यही निवेदन है। आप तमाम सूफीवादी विचारधारा के लोग जो 30 से 35% से भी ऊपर हैं, उनसे हमारी यही अपील है कि सब लोग इस बिल के लिए समर्थन करें ताकि ये पास हो और हम सूफियों की समस्याओं को दूर किया जाए। वक्फ बोर्ड में या तो हिस्सेदारी हो या हमारा दरगाह परिसर हमको बना के दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।